Hello, guys. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, all of you, and welcome to our conflict study workshop. Today, we are going to see key insight into the homeopathy. So, in under this topic, today we are studying psychosis in food eating. Psychosis in food eating, then the importance of neurotransmitters and their remedies, their effect, then embryology, embryology in germ layers. So types of layer and their miasm also. And at the last, we will see the handedness. So handedness हमने देखा है कि right brain dominance control the left side, left brain dominance control the right side. But what are the effects of this handedness in menopausal ladies? तो ये सब आज हम इस टॉपिक के अंडर देखने वाले की इंसाइट्स इनटू द होम्योपैथी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द food eating, that means appetite. So appetite, basically it is the need of body. So need, that means it is a sora. Need of food, it is sora. But when this sora become converted or become hyper excess, then it convert into the psychosis, and that psychosis appetite is like a government, that means excessive eating. हम जानते हैं कि सभी सिटीज में एक खाऊ गल्ली होती है जहां खाने के शौकीन आपको ऑलवेज मिलेंगे. जिनको खाने का शौक होता है, वो चेहरे, वो लोग आपको बार बार वहां दिखेंगे. दैट इज द गवर्नमेंट. So a person who takes great pleasure and interest in consuming particularly good food and drink. Government originally referred to a person who was a glutton for food and drink. A person who eats and drinks excessively. This is government. जिनको खाने की हॉबी होती है, जो खाने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, उन पर्सन्स के लिए. एंड दिस इज योर साइकोसिस, जिनको बहुत ही अलग अलग टाइप के डिशेस, अलग अलग टाइप का फूड, ड्रिंक्स बहुत पसंद होता है, उनकी रुचि खाने में बहुत ज्यादा होती है. दैट पर्सन्स आर गवर्नमेंट पर्सन एंड द माइजम इज साइकोसिस. एंड द रेमेडीज फॉर दैट पर्सन्स आर कैलक्रिया, चाइना, इपिकैट, मैक्का, mercury, natrium carb, and veratrum. So these are the remedies. These are the constitutions that are very much interested in food. So persons who love variety of food, tasty food, is government constitutions. Then
Gluttony. Yes. Gluttony, that means the excess in eating or drinking. Excessive. Greedy. Excessive indulgence. मतलब हम कभी कभी पार्टीज में, शादियों में, प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में देखते हैं कि कुछ कुछ लोग इतने थाली भर भर के ले लेते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि ये मैं सब खा पाऊंगा कि नहीं, और बाद में वेस्ट कर देते हैं. दिस इज ग्लूटोनी. ग्रीड. कुपिडिटी. ईटिंग. तो ग्लूटोनी आप अगर रूब्रिक ढूंढेंगे इन पर्सन्स के लिए, अगर कोई पर्सन है और जिसे बहुत खाने की आदत होती है और बहुत सारा खाते हैं, बहुत सारा फूड वो डिश में ले लेंगे, उन पर्सन्स के लिए रूब्रिक है ग्लूटोनी. बट व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर ग्लूटोनी इन माइंड चैप्टर, it has a substitute rubrics like greed, cupidity, eating in. And this rubric contains 61 remedies. This is also a psychotic rubric. But greed, cupidity, you can use as a psychosyphilitic also in syphilitic cases. Yes. And the third rubric, that is bulimia. ये भी एक खाने वालों के लिए ही रूब्रिक है. ब्यूलिमिया. So bulimia is an eating disorder. This is an disorder. So it is a characterized by uncontrolled episode of eating. अभी तो खाना खाया और अभी के अभी भूख लग गई. This is bulimia. So uncontrolled episodes of overeating. ये लोग रात में उठ उठ के खाना खाते हैं. 8 बजे खा के 9 बजे सो जाएंगे, रात में 12 बजे भूख उठे लगेगी और उठ के कुछ बना के खा लेंगे. दिस इज बुलिमिया. सो कॉल्ड बिंजिंग आल्सो. दिस इज फॉलोड बाय पर्जिंग बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग. यस. फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत खा लिया, बहुत पेट ओवरलोड हो गया और फिर उसे निकाल डालो. सो कभी कभी वोमिटिंग भी कर देते हैं. सो इंड्यूस्ड वोमिटिंग, misuse of laxatives and other methods, bulimia typically affects females and starts during the teenage years. बहुत सारे पेशेंट्स में because of some drugs, because of some medicines की वजह से भी ये आदत गिर जाती है. एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड की डिजायर होती है. दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर. सो दिस इज आल्सो साइकोसिस. बट ये साइकोसिफिलिटिक भी हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन्स को रात में भूख लगती है 10, 11, 12, 1, 2 के बीच में उठ के कुछ खा लेते हैं, दिस इज आल्सो सिफिलिटिक. सो दिस इज psychosis as well as syphilis. So the rubric in mind, that is bulimia, but bulimia माइंड चैप्टर में रूब्रिक तो दिया है लेकिन उसके लिए मेडिसिन नहीं है. लेकिन इसके लिए सब्स्टिट्यूट रूब्रिक आप देख सकते हैं स्टमक में एपेटाइट रैविनियस. सो एपेटाइट रैविनियस, अगेन एपेटाइट रैविनियस जब आप रूब्रिक देखेंगे तो उसके लिए भी मेडिसिन दिए हुए नहीं है, लेकिन उसका भी एक सब्स्टिट्यूट रूब्रिक आप यहां ले सकते हैं. दैट इज इन स्टमक एपेटाइट रैविनियस कैनाइन excessive, yes, and it has 234 remedies. तो इतने सारे remedies under this rubric. So bulimia, the rubric is appetite ravenous canine in stomach chapter. Yes. Now the next important point, that is neurotransmitters. हमने neurotransmitters, जब हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़े तब हमने neurotransmitters पढ़े हैं, लेकिन उसकी एक शॉर्ट रिवीजन और थोड़ा सा जब रात में पेशेंट उठ के 2, 2:30 बजे उठ के कुछ बना के खाता है और
रात में उसकी चिड़चिड़ हो जाती है खाने के लिए, पर्टिकुलरली किसी को जगाता है खाने के लिए, तब आप ये ले सकते हैं सिपिलिटी। Then the neurotransmitters, particularly these are few neurotransmitters giving some mental. So mentals में जैसे एंजाइटी, एंगर, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, ग्रीफ, happiness, cheerfulness, then contentmentness and love. So these feelings comes from these neurotransmitters. So which feeling comes from which neurotransmitter? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने हैं। सो एड्रेनलिन, देन सेरोटोनिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एंडोर्फिन एंड पीईए, फिनाइल इथिल अमाइन। तो ये बहुत ही लिमिटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिसकी वजह से हम सब फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, है ना। हमारे अंदर इतने सारे फीलिंग्स आते हैं और इसकी वजह से ही कितने सारे डिजीजेस होती हैं। सो जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ, उसके सिक्रीशंस में कुछ डिस्टरबेंसेस होते हैं, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को कवर करते हैं। सो एंजाइटी, इट गिव्स राइज फ्रॉम द एड्रेनलाइन। तो जैसे एड्रेनलाइन के सिक्रीशंस में कुछ अप डाउन्स होते हैं, तब एंजाइटी इंसान की बढ़ जाती है। और जब एंजाइटी बढ़ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, then it is called an disease. So anxiety because of adrenaline, irritability because of adrenaline, then sadness, grief because of serotonin and epinephrine, norepinephrine. These are three endocrines. Sadness, grief because of serotonin, epinephrine, and norepinephrine. Then happiness, cheerfulness by dopamine. So these are the hormones. Then contentment, endorphin, and love. Love gives rise to by phenylethylamine, PEA. तो जो पर्सन बहुत ही लवली होते हैं, लव दिखाने वाले होते हैं, जिनमें बहुत सारा प्यार भरे हुआ होता है, उनमें पीईए लेवल बहुत हाई होती है। तो ये एंडोक्राइन के सिक्रीशंस है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं, और इन पे डिपेंड होते हैं हमारे इमोशंस। सो इफ, अब ये इमोशन अगर कुछ बहुत ही कभी कभी एक्सेस हो जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी बिकम हाइपर हाइपर, सो इस टाइम पे इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन से रेमेडीज होम्योपैथी में है। सो एड्रेनालिन, एड्रेनालिन गिव्स राइज टू एंजाइटी। जब एंजाइटी बढ़ जाती है, देन द रेमेडीज, द प्रोमिनेंट रेमेडीज, 3 मार्क्स remedies are argenticum nitricum, arsenic, aurum, calcarea, carbon, kali, like all nitrums, sulfur, and veratrum. So these are the 3 marks remedy. Prominent remedies for anxiety excessive, anxiety trifles, anxiety anticipation, anxiety hysterical. So these are the rubrics under the anxiety covered by these remedies. And this anxiety become excess because of the adrenaline. Then again, adrenaline cause irritability also, anger. So irritability, anger, because of the excess adrenaline or in the disturbances in the secretion of adrenaline causes irritability or anger. And the remedies for this neurotransmitter is anti-crude, arsenic,
बेला, कलक्रियासल, कार्बनसल, कॉस्टिकम, कैमोमिला, हेपार, kali, nitrum, nux, omega. Yes. So these are the remedies, 3 marks remedies. Then serotonin, epinephrine, norepinephrine gives rise to sadness, grief. So these are the constitution that are basically genetically by birth very much nervous, sad, having lot of grief in their life, like ambra, aurum, causticum, helleborus, ignitia, nitrum, pulsatilla, sepia, staphysagra, acid fos, etc. Having excess secretion of serotonin, epinephrine, norepinephrine, etc. Then dopamine. Dopamine, it is a very cheerful, gay, happiness giving हार्मोन. सो जब डोपामिन बढ़ जाता है तब एक एक हाई लेवल हैप्पीनेस की आ जाती है ना. सो हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर दिस डोपामिन एक्सेस सिक्रेशन. देन एंडोर्फिन. एंडोर्फिन गिव्स राइज टू कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन. सो कंटेनमेंट के लिए रेमेडी जो है दैट इज बोरैक्स, कैप्सिकम, सिक्यूटा, ओपियम, मैग्नीशियम्स एक्सेट्रा. एंड द लास्ट इज PEA, gives rise to love, feeling of love, emotions of love. सो लव के लिए भी बहुत सारे रेमेडीज हैं जो इस फिनिल इथिल इमाइन को कवर करते हैं, उसे कंट्रोल में रखते हैं. दीज आर द रेमेडीज. जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो these remedies will work wonderfully. Yes. So these are the neurotransmitters, hormones, and giving rise to emotions और उसके remedies. Now the embryology. ये हमने जब हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे थे तो हमने 3 लेयर्स देखे. अलग अलग ऑर्गन्स में हमने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, these 3 germ layers की स्टडी की. देन उसके माइजम्स देखे, बट थोड़ा सा अलग टाइप से उसका मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूं कि these are the 3 germ layers, endoderm, ectoderm, endoderm and mesoderm. The mesoderm of ectoderm is sorosyphilis. The mesoderm of endoderm is psychosyphilis, and the mesoderm of mesoderm is sauropsychosyphilis. So ectoderm, it is because of nerve tissue. So brain, nervous system and epidermis develop from this ectoderm, binding all the organs like a family. All the organs like a family because of the nervous system, because of nerves. So, and integrates them by maintaining communication. So outermost covering, that is skin covered by this ectoderm, protection covering through the skin gives rise to this ectoderm, and you will never see any growth in ectoderm because the ectoderm having meism like sora and syphilis, only function and destruction. So इसीलिए आपको इसमें ग्रोथ नहीं मिलेंगे. So you will never see any growth. Destruction and degeneration takes place under this layer ectoderm. Okay, that's why the meism is psychosyphilis. Then the second germ layer, that is the endoderm, and the meism is sorapsychosis. The basic need of this layer is physiology of survival. Yes. So physiology of survival, जैसे कि हमने बेसिक नीड्स में हमने देखा कि बेसिक नीड क्या होती है, दैट इज सोरा.
देन सोरा जब फुलफिल हो जाता है तो अल्टीमेटली वहां साइकोसिस स्टार्ट हो जाता है. सो स्पेसिस आएगा, फिर सर्वाइवल ऑफ पेसिस आएगा, दैट इज साइकोसिस. सो एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज सोरा. फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, अगेन द सोरा. फ्रॉम हियर ओनली इवोल्यूशन टेक्स प्लेस. जब सोरा कंप्लीट हो जाता है ना, कि बच्चे ने बर्थ लिया, उसका बेसिक नीड है लव, अफेक्शन एंड फूड. सो ये जब उसे फुलफिल हो जाता है, देन लर्निंग. जैसे जैसे वो थोड़ा बढ़ेगा, ही लर्न्स मल्टीपल थिंग्स. सो दिस इज आल्सो अ सोरा. दिस इज द नीड ऑफ दैट चाइल्ड, कि उसे अगर कुछ बढ़ना है, बड़ा होना है, कुछ करना है, तो उसे सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज द बेसिक नीड. सो दिस इज सोरा. जब वो सब सीख के एक एज में एंटर करता है, दैट इज द यंग एज, देन वहां पे उसका सोरा कंप्लीट हो जाता है. देन ही स्टार्ट ग्रोइंग इन साइकोसिस. सो साइकोसिस जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तब उसके माइंड में आ जाएगा रिप्रोडक्शन. मैं तो बन गया, अब मेरे जैसा कोई चाहिए, दैट इज द रिप्रोडक्शन साइकोसिस. तो इसी बात पे उस वहां पे साइकोसिस स्टार्ट हो जाता है. देन फिर एक के दो, है ना, फिर दो के चार. दिस इज द साइकोसिस. सो फ्रॉम हियर ओनली इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, नो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट, है ना. तो कंप्लीट यहाँ पे आपको साइकोसिस ही मिलेगा. डिस्ट्रक्टिव कोई भी एजेंट, कोई भी प्रॉपर्टी आपको यहाँ नहीं मिलेगी. ओनली साइकोसिस, ओनली ग्रोथ, मल्टीप्लीकेशन, है ना. यस. सो चीयरफुल एंड टिमिड, नेवर एग्रेसिव. Fearful and timid persons always going to the height. So this is the starting of psychosis. जैसे सोरा कंप्लीट हो जाएगा, साइकोसिस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा. So react to any attack or trauma by fortification, so called psychosis. किसी भी चीज को रिएक्ट, किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी इंजरी को जब वो रिएक्ट करेगा, गिविंग एक्सेसिव ग्रोथ प्रोडक्शन. यस. सो दिस इज, जैसे कि उस एज में कुछ लगता है तो वहां पे फाइब्रोसिस होगा, द साइकोसिस. सो ऑलवेज एंडोडर्म विल गिव इनटू ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन. सो ऑल द endodermal organs will go into only growths. All the endodermal organs, जितने भी एंडोडर्म टिश्यू से फॉर्म होते हैं बॉडी के ऑर्गन्स, उनमें आपको ओनली ग्रोथ दिखाई देगी. ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर्स, सिस्ट, स्ट्रक्चर्स like this. So this is called endodermal organs or endodermal tissues, gives rise to psychotic miasm. So growth that cannot be any ulceration without or any exception. Yes. So वहां पे आपको कभी डिस्ट्रक्टिव, कोई भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं मिलेगी. जैसे हमने स्टमक की स्टडी की, स्टमक में जहां पे एक्टोडर्मल टिश्यू से वो पार्ट, उसका जो जैसे कि लेजर कर्वेचर हमने देखा, वहां पे ओनली एक्टोडर्मल टिश्यू से वो पार्ट बना हुआ है, तो वहां पे आपको ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव डिजीज देखेगा, दैट इज द अल्सर्स. सो जो पार्ट ग्रेटर कर्वेचर है वो एंडोडर्म से फॉर्म हुआ है, इसीलिए वहां पे आपको कभी डिस्ट्रक्टिव डिजीज नहीं दिखेगा. ऑलवेज वहां पे आपको कोई भी डिजीज होगा तो साइकोटिक डिजीज होगा, जैसे कि ट्यूमर, ग्रोथ और मोर ऑफ डायलेटेशन. यस. सो दिस इज साइकोसिस. देन if there is any growth in any part of the body, there is any growth or any part of the body, be sure it has to be endoderm. Yes. तो कहीं पे भी अगर आपको ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, ट्यूमर, सिस्ट, स्ट्रक्चर्स इस टाइप का कुछ दिखता है, तो दैट पार्ट कम्स अंडर द endoderm. So endoderm, the miasm is sora and psychosis. तो
very little part of sora comes in this layer. And the last, third layer, that is the mesoderm. So mesoderm, it is psychosis and syphilis. So psychosis, very little part comes under this mesoderm. Limbs develop, parenchyma develops. Next is packing material, bones, organs, locomotion and carrying. Bones for safety cage, values, esteem increase. So इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द डिस्ट्रक्शन. आपको पता है, बोन्स break, then parenchyma develops into the destructive disease degeneration. So the mesoderm always gives rise to the syphilitic diseases, degenerative diseases, destructive diseases, etc. Okay, so this is the three germ layer: ectoderm, endoderm, and the mesoderm. Okay, now mesoderm के two types है, एक old mesoderm and a new mesoderm. So old mesoderm goes into multiplication. That's why some psychotic part comes under this mesoderm. So multiplication under the old mesoderm and destruction under the new mesoderm. So old mesoderm goes into the multiplication and growth. New mesoderm goes into the destruction and degeneration. तो जो भी destructive diseases होगा, degenerative disease होगा, like cancers, comes under the new mesoderm. Okay? Yes. Now, the handedness. अब handedness में हमने देखा है कि right brain controls the left brain controls the right side. तो मोस्टली राइट साइड में कौन से पर्सन्स आते हैं, अभी आपको अनम्यूट करके बोलना है कि राइट साइड में कौन से पर्सन्स आएंगे, और ये राइट साइड के पर्सन्स हमें कब कंसीडर करना है और कब नहीं कंसीडर करना है. तो बताइए, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है, दैट मींस राइट साइडेड बॉडी पार्ट्स है, तो ये कौन से पर्सन से रिलेटेड रहेंगे. यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी loudly. Right sided person, बोलिए. That covers the left side of the brain, the sensitive part of the brain. Persons पूछा मैंने, persons, money, power, property, yes, definitely it is there, but persons. So all senior persons, father, father-in-law, grandfather, boss, teachers, friends, even enemies comes to the right side of the body. और जितने भी blood related that comes to the left side of the body, that means the right brain of the body, of right side of the brain. So right handedness. तो बट कभी कभी क्या हो जाता है कि ये हैंडेडनेस वर्क करना छोड़ देता है. जैसे हम ये कंसिडर करेंगे, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये हमें कब कंसिडर नहीं करना है, कौन से केस में इसे कंसिडर नहीं करना है हैंडेडनेस. अगर उस केस में गलती से भी हमने इसे कंसिडर कर लिया तो वहां आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां ये हैंडेडनेस हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी तक यही सीखा है कि यस, राइट हैंडेड है क्या, राइट ब्रेन डोमिनेंस है क्या, तो लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है तो राइट साइड में जाएगा. लेकिन ये ब्रेन डोमिनेंस कब लेना है और कब नहीं लेना है. ओके, सो राइट हैंडेड पर्संस क्लैप विथ राइट हैंड. यस, तो एक सिंपल प्रोसेस है इसे फाइंड आउट करने की. बहुत बार
बहुत डॉक्टर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है, निकाल ही नहीं पाया। और पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते, वो बोलते हैं नहीं मैं तो राइट हैंडेड हूँ। ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट टोल्ड यू आई एम राइट हैंडेड, दे नेवर टोल्ड यू दे आर लेफ्ट हैंडेड। तो ये बहुत पेशेंट में होता है, नहीं मैं तो सब काम हाँ राइट हैंड से ही करता हूँ। लेकिन राइट हैंड से करते हो, बाय बर्थ करते हो, बचपन से ही करते हो, या फिर बचपन में आपको वो हैबिट डाली गई, सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से लिखो, सीधे हाथ में पकड़ो, लाइक दिस। तो ये हैबिट्स की वजह से वो भी राइट हैंडेड खुद को समझने लगते हैं, लेकिन दे आर बेसिकली लेफ्ट हैंडेड। तो ये हमें, ये पॉइंट को हमें उनसे निकालना है, क्लियर करना है कि ऐसा कुछ बचपने में हुआ था क्या। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत ही टिपिकल टेस्ट है। जैसे कि उनको अगर हम क्लैप करने को लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको उनके तरफ ध्यान देना है कि वो कौन सा हाथ ऊपर रख रहा है, कौन सा हाथ हाथ कौन सा हैंड वो सबसे पहले क्लैप में लगाएगा। अगर कोई पर्सन क्लैप करता है तो ये राइट हैंड अगर ऊपर होता है तो दिस इज राइट हैंडेड। कोई पर्सन अगर लेफ्ट हैंड ऊपर रखता है तो दिस इज लेफ्ट हैंडेड। देन अगर इसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट ऐसे ताली बजा देते हैं तो समझ में नहीं आता राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है, तो ऐसे पर्सन्स में कंफ्यूज नहीं होना, उनको एक टिप, सिंपल सी एक पानी की बोतल दे देना और बोलना कि इसका ढक्कन खोलो। अगर वो फर्स्ट राइट हैंड उसे टॉप को लगाता है, कॉर्क को लगाता है और खोलता है, तो इट इज राइट हैंडेड। और बहुत से पेशेंट होते हैं कि राइट हैंड में बोतल पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे नहीं, और लेफ्ट हैंड से उसका ढक्कन खोलेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंडेड। तो ये सिंपल दो टेस्ट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। ओके, सो राइट हैंडेड पर्सन क्लैप विथ द राइट हैंड on the top. Yes, always they keep right hand on the top. Left-handed person clap with the left hand on the top. Yes. So handedness also can be ruled out in menopausal women and in those who are having hormones. तो अब ये पार्ट शुरू हुआ कि अब हमें हैंडेडनेस किस केस में कंसीडर नहीं करना है। ओके, सो basic handedness is right. Sensitive brain controls the left side of the body. You know, so right-handed person, that means sensitive brain controls the left side of the body. तो right-handed है मतलब ब्रेन का लेफ्ट पार्ट उसे कंट्रोल कर रहा है, और लेफ्ट हैंडेड है मतलब ब्रेन का राइट पार्ट उसे कवर कर रहा है। सो ओनली 3 to 4 sensitive things which affect the left side, and that 3 to 4 sensitive things are: rest, hold open the right side, the this handedness mostly on sensitive side, sensitivity of the patient. So whenever a lady goes into the menopause, her sensitivity decreases, so handedness can be ruled out here. तो ऐसे केस में हमें हैंडेडनेस लेना नहीं है। सिंपल सी बात है, जो लेडीज अब वो 45 है और उनमें हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, वहां पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो गई है, वो स्टॉप होने की वजह से वहां पे हार्मोनल चेंज हुआ है, और उनमें जो फेमिनाइन हार्मोन्स थे वो वहां पे बहुत कम सिक्रीशन हो रहे हैं। हो सकता है वो कंप्लीटली नहीं हो, एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स हो, और उनमें मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन एक्सेस हो रहा है, तो वहां पर हमें हैंडेडनेस नहीं लेना है, क्योंकि वहां का हैंडेडनेस चेंज हो गया। वहां की अब लेफ्ट जो ब्रेन की लेफ्ट साइड जो सेंसिटिव होती है, दैट राइट साइड बिकम सेंसिटिव। इसीलिए ऐसे केस में हमें हैंडेडनेस नहीं लेना है, ऐसे केस में उसे रूल आउट कर देना, छोड़ देना, नहीं लेना, कंसिडर नहीं करना। लेकिन अगर आपको बहुत प्रोमिनेंटली मिल रहा है और आप कंफर्म है, तो आप उसे कंफर्मेटरी पर यूज कर सकते हैं, बट मेडिसिन के लिए नहीं। ओके, यस। देन और एक केस, जैसे कि भाई ये बिकॉज ऑफ नेचुरल हो गया कि अब इन द एज ऑफ मेनोपॉज, जैसे कि अब वो 40 to 55
इस एज में जनरली ऑल वुमेन्स में ये होता है कि हार्मोन चेंज हो गए और वहां पे हमें हैंडेडनेस कंसिडर नहीं करना है। बिफोर 45 आप उन लेडीज का हैंडेडनेस यूज कर सकते हैं, उनकी साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, लेकिन अबो 45 ये थोड़ा रिस्की रहेगा और इसे करना ही नहीं है। देन और एक केस, जैसे कि जिन लेडीज में बहुत सारे सर्जरीज हुए हैं, जैसे कि हिस्टेक्टोमी हो गई, है ना, जो भी फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उसे रिमूव कर दिया, तो वहां पे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली वहां पे हार्मोन्स चेंज हो गए और फिर उसका सिक्रेशन स्टॉप हो गया। तो ऐसे केसेस में भी हमें हैंडेडनेस कंसिडर नहीं करना है। सो दोज वुमन हु हैव डन पैन हिस्टेक्टोमी, what is panhysterectomy? That means surgical removal of the uterus and the ovaries and oviduct and cervix and related lymph node also. That means panhysterectomy, her sensitivity goes down. So जब तक कोई भी लेडी वुमन सेंसिटिव है, मतलब उनमें फीमेल हार्मोन्स बराबर नॉर्मली सीक्रेट हो रहा है और उनकी सेंसिटिविटी गोज डाउन, दैट मींस दे बिकम डोमिनेंट और इगोइस्टिक और मेल डोमिनेंस उनमें आना शुरू हो जाता है, दैट लेडीज। और ऐसे लेडीज में आपको हैंडेडनेस कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वहां की सेंसिटिविटी कंप्लीटली निकल गई। सो नो, हर सेंसिटिविटी गोज डाउन, नो मोर फीमेल सी इज मेल। यस, तो उनमें मेल हार्मोन्स सिक्रेशन बढ़ने की वजह से और सेंसिटिविटी डाउन होने की वजह से मेल हार्मोन्स वहां सिक्रेट होगा, मेल डोमिनेंस वहां पे बढ़ेगा, इसलिए वहां पे left side become right and right side become left. So that time this handedness does not matter. So those women who are on hormones, again third बात, पहले जो नॉर्मल नेचुरल है, नेचुरली अगर वहां पे मिनोपॉज आए तो वहां पे हमें हैंडेडनेस में कंसिडर नहीं करना है। सेकंड, कोई सर्जिकल रिमूवल हुआ है ऑर्गन्स का तो उस केस में भी हमें कंसिडर नहीं करना है। और थर्ड केस, जो those women who are on hormones, बहुत से लेडीज हार्मोन ट्रीटमेंट करते हैं, so they also cause confusion of left and right handedness because of artificial hormones। तो आर्टिफिशियल हार्मोन्स बॉडी में जाने की वजह से वहां पे कंफ्यूजन ऑफ माइंड स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे केसेस में भी अगर वो लेडीज कुछ फीमेल हार्मोन्स ले रहे हैं या फिर और कोई हार्मोनल उनकी ट्रीटमेंट चालू है, तो ऐसे केसेस में प्लीज आपको साइड कंसिडर नहीं करना है। ओके, सो दिस इज द हैंडेडनेस। आप ईच एंड एवरी केस में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हैंडेडनेस कब कंसिडर करना है और हैंडेडनेस कब कंसिडर नहीं करना है। ओके, नाउ सम फ्यू पॉइंट्स, सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही सिंपल वन लाइन सिम्टम्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने प्लम्बम पढ़ाया था, प्लम्बम हमने देखा कुछ लेक्चर्स पहले। सो प्लम्बम पेशेंट एर्न्स अ लॉट when he becomes anxious। जैसे एंजाइटी बढ़ती है, अभी हमने देखा एंजाइटी के लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एड्रेनालिन। अगर वो सीक्रेट वहां पे बहुत एक्सेसिवली होता है, then plumbum become very much anxious and tense। तो इतने एवनिंग उसे होगी, बट ओनली ये सिंपल पॉइंट देख के हमें प्लम्बम प्रिस्क्राइब नहीं करना है। आपको प्लम्बम के लिए वहां पे एंजाइटी है क्या, थर्मल थर्स्ट मैच हो रही है क्या, उसके फिजिकल जनरल्स मैच हो रहे हैं क्या, ये सब देख के आपको प्लम्बम देना है। लेकिन ये आपको उस मेडिसिन का एंट्री पॉइंट आपको देगा, उसके लिए आपको एक डोर ओपन कर देगा कि यू कैन थिंक अबाउट द प्लम्बम। Then those who can not bear smell of tobacco or smoking,
बहुत से लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग या फिर टोबैको के स्मेल से नौशिया फील होता है, वोमिटिंग हो जाती है। दैट रेमेडीज आर पेट्रोलियम एंड सेपिया। इवन बहुत से पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी वो कभी टॉकीज में, सिनेमा थिएटर्स में, कभी कोई क्राउडेड प्लेस पे जा नहीं पाते। वहां अगर गए कि उनको नौशिया फील होता है और वोमिटिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सेपिया एंड पेट्रोलियम इज द बेस्ट रेमेडी। बट यहाँ यहाँ पे भी आपको ओनली ये पॉइंट देखा और रेमेडी दे दी, ऐसा नहीं, आपको होल केस इन रेमेडीज से आपको मैच करनी पड़ेगी। ओके, सो अगेंस्ट मैरिज एंजॉइंग विथ मेनी मेन, अगेंस्ट मैरिज एंजॉइंग विथ मेनी मेन एंड नो रोल ऑफ इमोशन लाइक, यस, ये बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मैरिज हो गया और बहुत से लोगों से संबंध है, मैरिज नहीं हुआ, बिफोर मैरिज भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड से, बहुत सारे मेल से उनका रिलेशन है। तो ऐसे केसेस में द रेमेडीज आर फ्लोरिक एसिड एंड द पिक्रिक एसिड। नो इमोशन, नो अटैचमेंट, नो फीलिंग, ओनली द desire for enjoyment. Yes. So this is fluoric acid and picric acid. Okay. That means excessive secretion of PEA यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे only the amativeness or adulterness हो रहा है. So no emotions comes in this. Then if you see a child is bleeding from all orifices, child is bleeding from all orifices like nose, urethra, anus, ears also, use Crotalus horridus. Crotalus horridus 30 suggested by Dr. Praful Vijayakar sir in pediatric cases only. But in adult cases, if there is excessive bleeding, uncontrolled bleeding, sir suggest Vipera 200. Vipera 200. Yes. So in pediatric, it is Crotalus. In adult, it is Vipera. All political could be sepia. Why? अब इसका जवाब आपको देना है. Why sepia is there? All politicians could be sepia. बताइए ऐसा क्यों? वो सेपिया क्यों होंगे? बेसिकली सेपिया इज वेरी इंडिफरेंट, बट ये पॉलिटिकल लीडर्स क्यों सेपिया होंगे? Sepia is not a positive, it is negatively positive. Basically, all politicals are by nature negative, but दिखाते हैं पॉजिटिव, है ना? दे आर नेगेटिवली पॉजिटिव. यस, ये पॉइंट है ये. और बताइए और क्या हो सकता है? बोलिए फास्ट. व्हाई द सेपिया फॉर पॉलिटिशियंस? All politicians could be sepia because these persons are very much political. They never have close relations. आप देखो कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, जब उनका कोई स्वार्थ, उनका कोई फायदा दिखेगा, पट से पार्टी छोड़ देंगे, दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे. आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का क्या हाल हुआ, है ना? वो तो रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, ब्लड रिलेशंस है, फिर भी पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी बना ली, ओनली फॉर द सम पॉलिटिकल बेनिफिट्स, है ना? सो नो ब्लड रिलेशन, नो love for the relations,
that means completely indifferent to the relations. So this is sepia, only practical, only political. So this is politicians become sepia. Then if a person says, you can come with me, but cannot hold my hand. Yes, बहुत से पर्सन बोलते हैं जब आप क्लिनिक में देखते हैं कि कोई पेशेंट आया और उसे किसी ने पकड़ के लाया तो पेशेंट पर से हाथ छटक देगा और बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा, मुझे पकड़ो। अभी अभी मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, अभी वो टाइम आया नहीं, आई कैन वॉक। सो अ पर्सन सेज यू कैन कम विथ मी बट cannot hold my hand. The remedy is sina. Yes. So these are the very simple point but very very important point. Okay, so this is today's topic, very very interesting. Now you can unmute yourself and say something. Yes, बोलिए, कुछ बोलना है तो अनम्यूट कीजिए और बोलिए। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अभी जो आपका चालू है ना कि सामने होके पढ़ाते हो, तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, आई थिंक बाकी को भी आ सकती है कि जो हम स्क्रीनशॉट निकालते ना वो पूरे नहीं आ रहा है, साइड ओके साइड से थोड़ा आपके पीछे जा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ सर। मैं बाकी मैं कुछ थोड़ा सा वो उसे मतलब साइड में कर लेता हूँ, हम्म। एक तरफ आ जाएगा वो तो। एक साइड में मैं रहूंगा, एक साइड में वो रहेगा, तो आपको क्लियरली वो दिखेगा। ओके, यस यस सर, ओके, थैंक यू सर। यस। और बहुत कम अभी हमारे सेशंस बचे हैं, इसलिए साल भर तक आप चुप रहे, अभी तो बोलिए। सर एवियन की इमोशनल पैथोलॉजी क्या हो सकती है सर? एवियन एवियन सर, एवियन, इमोशनल पैथोलॉजी क्या हो सकती है सर? ईगो हाँ कॉम्प्रोमाइज। एवियन, अवास्कुलर नेक्रोसिस बताया था। बोलिए, वास्कुलर नेक्रोसिस मतलब वेसल्स, बोन्स इन्वॉल्वमेंट, और बोन्स और वेसल्स का एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, दैट ईगो, इज ईगो और प्रेस्टीज। सेल्फ डिवैल्यूएशन। यस 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 सर। यस, और बोलिए, ऑनर। यस, ओके। सो और कुछ अगर नहीं बोलना है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। कल फिर मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।